So, a very good morning, students. I welcome you all once again for the online lecture series on the railways, airport, and waterways. So, this is actually the lecture 20 of module 2, and this lecture 20 is all about the introduction to the railway stations. Okay, so in this lecture, we'll look towards the railway stations, its introduction, its classification, and its types. Okay, so its types and classification and is actually based on some category. We'll also look in this lecture. So let us have look at the outline of this entire lecture. So outline of this entire lecture will goes like this. It will start from the introduction to the stations, then the purpose of the railway station, types of stations, and the classification of the station. So this entire lecture will be divided into four different parts, that is the station, purpose of railway station, types of station, and the classification of the stations. Right. Now moving towards the next slide. So my dear student, actually this starts with a with a question. So the first question is, how do you define a station? What is the definition of a station? Right. So अगर मैं definition बताऊं आपको स्टेशन की, तो वो डेफिनेशन अगर छोटा सा एक डेफिनेशन हो सकता है तो वो ये हो सकता है कि a railway station or a railroad station and often shortened to a just station. So there are three names: what, railway station, railroad station, and sometimes we often shorten just to a station. Is a railway facility where trains regularly stop to load or unload the passenger and और फ्रीट. ओके, तो एक छोटी सी लैंग्वेज में ये समझो कि एक रेलवे स्टेशन या तो एक रेल रोड स्टेशन या तो आप कहो एक स्टेशन, ये रेलवे की वो फैसिलिटी है जहां पे ट्रेन रेगुलरली आके रुकती हैं, जहां पे आपके पैसेंजर और फ्री, ठीक है, मतलब गुड्स का लोडिंग और अनलोडिंग. ओके, so a definition of a railway station is that a railway station or railroad station, and often shortened to just station, is a railway facility where trains regularly stop to load or unload the passengers and or freight. Okay, so I will highlight this entire definition. A railway station or a railroad station, and often shortened to just a station, is a railway facility where trains regularly stop to load or unload the passenger and or freight. Okay, तो ये है आपका रेलवे स्टेशन या रेल रोड स्टेशन या तो जस्ट स्टेशन का डेफिनेशन. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अगर मैं आपको एक रेलवे स्टेशन का एक इंटायर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं तो वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एक स्टेशन का कुछ ऐसा होता है. राइट, तो आप देख सकते हैं, दिस इज योर पैसेंजर स्टेशन. राइट, दिस इज योर पैसेंजर स्टेशन, दिस एरिया इज योर फॉर द पार्किंग, ये आपका स्टेशन का प्लेटफॉर्म है. दिस इज योर सिग्नल टावर, this is your signal gantry plus freight car. Okay, this is your mast, this is your Caesar crossing, ये आपका रिप्रेजेंट करता है स्विच. दिस इज योर फीड स्टेशन, ठीक है, जहाँ पे गुड्स वगैरह आपके और फीड्स आपके लोड और अनलोड किए जाते हैं. दिस इज योर डीजल शॉप. ओके, दिस इज योर साइडिंग, साइडिंग पार्ट ये होता है. दिस इज योर अंडरग्राउंड पैसेज, this is your bumper part, this is your platform shelter, this is your suburban commuter railroad, then your commuter train, grade crossing plus main line, semaphore signal and footbridge. Right, तो एक स्टेशन के अराउंड जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिसको कंबाइन करके एक स्टेशन का रिप्रेजेंटेशन होता है, उसमें कौन कौन से आपके कंपोनेंट्स होते हैं. एक पैसेंजर स्टेशन, पार्किंग, स्टेशन प्लेटफॉर्म, सिग्नल टावर, सिग्नल गैनेटरी प्लस फ्रेट कार, मास्ट, सीजर क्रॉसिंग, स्विच, फ्रेट स्टेशन, डीजल शॉप, साइडिंग, अंडरग्राउंड पैसेज, बम्पर, प्लेटफॉर्म शेल्टर,
suburban commuter railroad, footbridge, semaphore signal, plus main line, grade crossing and commuter train. Okay, तो ये हो गया आपका एक रेलवे स्टेशन या तो एक रेल रोड स्टेशन या तो एक स्टेशन की डेफिनेशन, मतलब वो फैसिलिटी जहाँ पे आपके रेलवे ट्रेन्स लोड या तो लोड अनलोड किए जाते हैं, या तो पैसेंजर्स या तो आपका फ्री। ठीक है, अब स्टेशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं ये मैंने आपको इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से दिखाया। राइट, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरी चीज ये आती है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रेलवे स्टेशन, मतलब रेलवे स्टेशन को क्यों प्रपोज किया। ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन की जरूरत क्यों। तो अगर हम इसको कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करें तो पहला है फॉर एक्सचेंज ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स। राइट, सो मैंने आपको बताया था कि अ रेलवे स्टेशन इज अ फैसिलिटी वेयर द ट्रेन्स are loaded and unloaded with the passenger and freight. तो इसका मतलब पहला पॉइंट हो गया फॉर द एक्सचेंज ऑफ द पैसेंजर एंड गुड्स। क्लियर है। दूसरा है फॉर द कंट्रोल ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये है कि आपके जो ट्रेन मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए हम रेलवे स्टेशन का यूज करते हैं। तीसरा पॉइंट, टू एनेबल द ट्रेन्स ऑन अ सिंगल लाइन ट्रैक टू क्रॉस फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, हम एक ट्रेन को अलाउ करते हैं अगर कोई सिंगल ट्रैक है, ठीक है, तो अगर उसे अपोजिट डायरेक्शन से कोई ट्रेन आ रही है, ठीक है, उस समय हम उस ट्रेन को क्रॉस करने को इनेबल करने के लिए एक रेलवे स्टेशन का यूज करते हैं। ठीक है, डबल लाइन है तब तो चलेगा, लेकिन अगर जब सिंगल लाइन होता है तो उस केस में एक रेलवे स्टेशन की रिक्वायरमेंट है। राइट, चौथा पॉइंट, टू एनेबल द फॉलोइंग एक्सप्रेस ट्रेन टू ओवरटेक। ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन को अगर ओवरटेक करना है तो भी आपको एक रेलवे स्टेशन की जरूरत पड़ेगी। राइट, फिर है फॉर टेकिंग डीजल और कोल एंड वाटर फॉर द लोकोमोटिव्स। ओके, देन फॉर डिटैचिंग इंजन्स एंड रनिंग स्टॉप। फिर है फॉर डिटैचिंग और अटैचिंग ऑफ कंपार्टमेंट्स एंड वैगन्स, for sorting of bogies to form new trains, housing of locomotive in loco sets, in emergencies in each of this location of track due to rains, accidents, etc. For repairing the engines and changing their direction, अगर आपके इंजन्स को रिपेयर करना है या उसके डायरेक्शन को चेंज करना है तो भी हमें रेलवे स्टेशन की जरूरत पड़ती है। रेलवे स्टेशन are having suitable approach roads for the surrounding area. So these are actually what listed purpose of the railway station, जिसमें क्या क्या है, for the exchange of the passenger and goods, for control of the train movements, to enable the trains on a single line track to cross from opposite direction, to enable the following express trains to overtake, for taking diesel or coal and water for the locomotives, for detaching the engines and running the staff, for detaching or attaching of compartments and wagons, for sorting of bogies to form new trains, housing of locomotive and loco sheds, in emergencies in ease of dislocation of track due to rains, accidents, etc., for repairing engines and changing their direction. The railway station are having suitable approach roads from the surrounding areas. ठीक है, इसके बाद पर्पस के बाद आते हैं व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेशन। अगर मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेशंस की बात करूं तो उसको मैं तीन तरह में डिवाइड करूंगा। कौन से हैं? वे साइड स्टेशन, पहला है वे साइड स्टेशन, दूसरा है जंक्शन स्टेशन, सेकंड पॉइंट, और तीसरा है टर्मिनल स्टेशन। ठीक है, तो तीन पॉइंट में मैं कैसे डिवाइड करूंगा? वे साइड स्टेशन, जंक्शन स्टेशन एंड टर्मिनल स्टेशन। राइट, उसके बाद है स्टार्ट करते हैं वे साइड स्टेशन। वे साइड स्टेशन क्या होता है? वे साइड स्टेशन कहो या आप जंक्शन स्टेशन कहो या टर्मिनल स्टेशन कहो, ये स्टेशन किसी न किसी तरीके से कुछ कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन। तो वे साइड स्टेशन किसका कॉम्बिनेशन होता है, कौन सा अरेंजमेंट होता है? इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स आर मेड फॉर क्रॉसिंग और फॉर ओवरटेकिंग द ट्रेन्स। वे साइड ट्रेन्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप: हॉल्ट स्टेशन, फ्लैग स्टेशन एंड क्रॉसिंग स्टेशन। तो पर्पस के हिसाब से अगर आपको क्रॉस करना है या तो ट्रेन्स का ओवरटेकिंग करना है, उस केस में हम एक ऐसा अरेंजमेंट करते हैं जिसमें हम एक स्टेशन को फॉर्म करते हैं और उस स्टेशन को हम कहते हैं वे साइड स्टेशन।
So in the wayside stations, the arrangements are made as such that crossing or overtaking of the trains are allowed. Okay, and the wayside stations are of the following type. पहला है halt stations, flag stations और crossing stations. इसको तीन तरह में डिवाइड किया गया है, जिसमें फ्लैग है, halt है और क्रॉसिंग स्टेशन. ठीक है, अब वेसाइड स्टेशन को हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि वेसाइड स्टेशन को कैसे हम डिवाइड करते हैं. तो halt स्टेशन क्या है? ठीक है, पहले तो हम समझ गए कि वेसाइड स्टेशन का क्यों यूज किया जाता है. वेसाइड स्टेशन का हम यूज करते हैं माय डियर स्टूडेंट फॉर द क्रॉसिंग एंड द ओवरटेकिंग ऑफ द ट्रेन. ठीक है, अब उसका डिवीजन कैसे किया गया? सबसे पहला है halt स्टेशन. ठीक है, अब देखो halt स्टेशन क्या होता है. एक स्मॉल स्टेशन, halt स्टेशन इज अ स्मॉल स्टेशन usually unstaffed or with few or no facilities. ठीक है, एक halt स्टेशन एक छोटा सा स्टेशन होता है, यूजुअली अनस्टाफ, मतलब वहां पे कोई स्टाफ नहीं होता है. ठीक है, और जनरली वहां पे कोई बहुत फैसिलिटीज भी नहीं होती है. ठीक है, इन सम केसेस ट्रेन्स स्टॉप ओनली ऑन रिक्वेस्ट when the passenger on the platform indicate that they wish to board or passengers on the train inform the crew that they wish to alight. ठीक है, तो एक halt स्टेशन का मतलब ये हुआ कि it is a very small station, it is unstaffed and with few or no facilities. Okay, और यहाँ पे ट्रेन कभी रुकती है या halt पे आती है due to the request. Okay, in some cases only the train stop, and it is also on the special request when the passengers on the platform indicate that they wish to board or the passenger on the train inform the crew that they wish to alight. Okay, so this is your halt station. अब halt station आपका, अगर मैं इसका लेआउट आपको बताऊं एक halt स्टेशन का, देखो एक halt स्टेशन आपका वे साइड स्टेशन ही है. ठीक है, अब halt स्टेशन का अगर लेआउट आपको दिखाओ तो उसका लेआउट कुछ ऐसा होता है. ठीक है, ये आपका प्लेटफॉर्म है 250 मीटर लॉन्ग. ठीक है, यहाँ पे आपका स्टेशन का नाम होता है, नेम बोर्ड होता है, राइट, और ये आपकी रेलवे लाइन. तो एक सिंपल सा छोटा सा स्टेशन है. ठीक है, halt स्टेशन, जहाँ पे कोई भी बेसिक फैसिलिटीज नहीं होती हैं, ना तो वहाँ पे किसी भी तरीके का स्टाफ अवेलेबल होता है, और ट्रेन आपके स्पेशल रिक्वेस्ट पे कुछ केसेस में ही halt करती है. ठीक है, जब आपके पैसेंजर को डिबोर्ड करना होता है, या तो अलाइट करना होता है, या तो बोर्ड करना. राइट, सो दिस इज योर द लेआउट ऑफ द halt स्टेशन. राइट, इज इट क्लियर? ये किस तरह का स्टेशन है? वे साइड स्टेशन. ठीक है, अब halt स्टेशन के बाद दूसरा आता है फ्लैग स्टेशन. दूसरे टाइप का कौन सा स्टेशन होता है? वे साइड स्टेशन में फ्लैग स्टेशन. ठीक है, अब फ्लैग स्टेशन के फीचर क्या है? फ्लैग स्टेशन का मतलब ये हुआ, फ्लैग स्टेशन डिस्क्राइब अ स्टॉपिंग पॉइंट एट व्हिच ट्रेन्स स्टॉप ओनली ऑन as need or request basis, that is only if there are passengers to be picked up or dropped. ठीक है, तो एक फ्लैग स्टेशन का मतलब हुआ एक स्टॉपिंग पॉइंट. ठीक है, फ्लैग स्टेशन का मतलब हुआ एक स्टॉपिंग पॉइंट, जहां पे ट्रेन तभी रुकती है जब आपका कोई नीड होती है या रिक्वेस्ट बेसिस पे, राइट, एंड ओनली इफ द पैसेंजर्स आर टू बी पिक्ड अप और ड्रॉप्ड. ठीक है, या तो आपको पैसेंजर को पिक करना होगा या तो उसे ड्रॉप करना. The flag station is a stopping station, is a stopping point at which the trains stop only on as a need or request basis. That is only if there are passengers to be picked up or drop off. ठीक है, ये हो गया आपका flag station. And flag station comes under the wayside station. ठीक है, फिर है these stations have no overtaking or crossing facility. यहाँ पे कोई overtaking या crossing facility नहीं provide होता है. And arrangements to control the movement of the train. These stations have buildings, staff and telegraph facilities. कौन सी facilities available है? Buildings है, staff है और telegraph है. लेकिन crossing और overtaking facilities इस स्टेशन पे नहीं provide होता है. ये कौन सा स्टेशन है? एक stop point स्टेशन ही है, जो कि आपका need के अकॉर्डिंग या request basis के अकॉर्डिंग आपके passengers को pick या drop किया जाता है. ठीक है, some of the flag stations have siding also in the form of loops. Okay, so this is your flag station. अब हम लेआउट दिखाते हैं कैसे एक फ्लैग स्टेशन का लेआउट दिखता है. ठीक है, जब मैंने आपको
एक हॉल्ट स्टेशन का लेआउट दिखाया था, तो उसमें सिंपली एक प्लेटफॉर्म था 250 मीटर लॉन्ग और नेम बोर्ड अवेलेबल था और रेलवे लाइन के साइड था, ठीक है। तो उसको हमने बोल दिया हॉल्ट स्टेशन, ठीक है। अब फ्लैग स्टेशन में क्या होता है, एक रेलवे प्लेटफॉर्म 250 मीटर लॉन्ग होता है, लेकिन और भी थोड़ी सी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड होती है, जैसे इसमें स्टेशन बिल्डिंग भी अवेलेबल होता है, ठीक है, एंड अदर फैसिलिटीज भी अवेलेबल होती हैं, और दिस इज योर रेलवे लाइन। सो दिस इज योर लेआउट ऑफ द फ्लैग स्टेशन, ओके। ये हो गया आपका फ्लैग स्टेशन। उसके बाद आता है क्रॉसिंग स्टेशन, ठीक है। मैंने अभी जब स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया था वे साइड स्टेशन को हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं, जिसमें हॉल्ट स्टेशन है, फ्लैग स्टेशन है और क्रॉसिंग स्टेशन, ठीक है। तो हमने 2 स्टेशन देख लिया, हमने देख लिया हॉल्ट स्टेशन और फ्लैग स्टेशन। अब बारी है क्रॉसिंग स्टेशन की, ठीक है। क्रॉसिंग स्टेशन का मतलब ही हुआ, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, इट इज प्रोवाइडेड विद द फैसिलिटीज फॉर क्रॉसिंग, ठीक है। In this type, at least one loop line is provided to allow another train if one track is already occupied by a waiting train, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये फैसिलिटी, it is provided with the facilities for crossing. Okay, first thing, in this type at least one loop line is provided, एक loop line provide किया जाता है to allow the another train if one track is already occupied by a waiting train, right? Generally the train to be stopped is taken on the loop line and the through train is allowed to pass on the main line, मतलब 2 लाइन होती है, मेन लाइन और लूप लाइन, ठीक है। तो जो आपका मेन लाइन है उस पे आपके ट्रेन को पास कराया जाता है और लूप लाइन पे आपके ट्रेन को वेट कराया जाता है। वेटिंग लाइन कौन सा है, वो लूप लाइन, राइट। सो इट इज प्रोवाइडेड विद द फैसिलिटीज फॉर क्रॉसिंग। द फर्स्ट थिंग, in this type at least one loop line is provided to allow another train if one track is already occupied by a waiting train. The second point, the third point is generally the train to be stopped is taken on the loop line and the through train is allowed to pass on the main line. So this is about your crossing station. This actually comes under the wayside station, ठीक है। और क्रॉसिंग स्टेशन का एक अगर लेआउट आपको मैं दिखाऊं, तो उस लेआउट के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो ऐसा है, ठीक है। ये आपका प्लेटफॉर्म है। अगेन आई टोल्ड यू देयर विल बी 2 लाइंस, द वन विल बी मेन लाइन जिसपे हम ट्रेन को पास कराते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है लूप लाइन जिसपे हम वेटिंग ट्रेन को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसे वेट करते हैं, ठीक है। ये आपका स्टेशन बिल्डिंग है, दिस इज योर लूप लाइन, दिस इज योर नेम बोर्ड, सैंड हम्प, ओके, डेड एंड साइडिंग, दिस इज योर फुट ओवर ब्रिज, ठीक है। ये आपका पास प्लेटफॉर्म है और ये आपका आइलैंड प्लेटफॉर्म। तो 2 प्लेटफॉर्म भी होते हैं जिसमें आपका एक मेन लाइन होता है, एक ब्रांच लाइन होता है, ठीक है। और आइलैंड प्लेटफॉर्म से पास प्लेटफॉर्म जाने के लिए हम जो कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं उसको कहते हैं फुट ओवर ब्रिज, ठीक है। और इसमें सैंड हम्प, डेड एंड साइडिंग, नेम बोर्ड, लूप लाइन, पास प्लेटफॉर्म, आइलैंड प्लेटफॉर्म, these are actually the components of the layout of a roadside or a crossing station, okay. Okay, so after the crossing station अब हम बात करेंगे जंक्शन स्टेशन, राइट। मैंने आपको 3 तरह के स्टेशन बताया था। 3 तरह के स्टेशन में वे साइड स्टेशन, जंक्शन स्टेशन एंड टर्मिनल स्टेशन। फिर मैंने आपको वे साइड स्टेशन में 3 तरह का उसका सब क्लासिफिकेशन बताया, हॉल्ट स्टेशन, फ्लैग स्टेशन एंड क्रॉसिंग स्टेशन। अब मैं थर्ड टाइप का जो स्टेशन वो है जंक्शन स्टेशन। तो जंक्शन स्टेशन के बारे में हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे। एट अ जंक्शन स्टेशन लाइंस फ्रॉम 3 और मोर डायरेक्शन, ठीक है। जंक्शन का मतलब ये होता है, एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में सुनाऊं, जंक्शन का मतलब ये होता है जहां पे डिफरेंट डायरेक्शन से लाइंस आपकी एक पॉइंट पे आके मीट कर। So at a junction station, lines from 3 or more directions meet. The first point, it should be very clear that at a junction station, lines from 3 or more directions should meet. Okay, and the second point is that the station where a branch line meets the main line are known as junction. ठीक है, मतलब जहाँ पे ब्रांच लाइन आपकी मेन लाइन से मीट करती है उसे कहते हैं जंक्शन। पहली चीज ये कि जंक्शन स्टेशन पे 3 डायरेक्शन से, ठीक है, लाइंस फ्रॉम द 3 और मोर डायरेक्शन शुड मीट।
ठीक है, और the station where a branch line meets the main line are known as junction. ठीक है, अब अरेंजमेंट कैसा होता है जंक्शन स्टेशन का? फैसिलिटीज फॉर इंटरचेंजिंग ऑफ द ट्रैफिक बिटवीन मेन एंड ब्रांच। ठीक है, जंक्शन स्टेशन पे पहली फैसिलिटी ये होती है फॉर द इंटरचेंज ऑफ द ट्रैफिक बिटवीन द मेन लाइन एंड ब्रांच लाइन। ठीक है, दूसरी फैसिलिटी है टू क्लीन एंड रिपेयर द कंपार्टमेंट्स ऑफ द ट्रेन। ठीक है, और दूसरी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है टू क्लीन एंड रिपेयर द कंपार्टमेंट्स ऑफ द ट्रेन। और तीसरी फैसिलिटी होती है फैसिलिटीज फॉर गुड साइडिंग, इंजन सेट्स एंड टर्न टेबल etc. So a junction station lines from 3 or more directions should meet. The second is the stations where a branch line should meet the main line are known as junction. And the arrangements in junction stations are facilities for interchange of the traffic between the main and the branch line, facilities to clean and repair the compartments of the train, facilities for good siding, engine sets, and the turntable etc. Okay. Now, moving towards the layout of the junction station. एक जंक्शन स्टेशन का लेआउट कैसा होना चाहिए? तो अगर एक जंक्शन स्टेशन का लेआउट मैं बताऊं तो उसमें पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि आपकी जो मेन लाइन है वो 3 डिफरेंट डायरेक्शन से आके मीट करे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेन लाइन भी अवेलेबल है और ब्रांच लाइन भी अवेलेबल है और लूप लाइन भी अवेलेबल है। सो देयर विल बी अ लूप लाइन, देयर विल बी अ मेन लाइन एंड देयर विल बी अ ब्रांच। ठीक है, सो देयर आर 3 लाइंस, लूप लाइन, मेन लाइन एंड ब्रांच, जो 3 डिफरेंट डायरेक्शन से आके आपकी एक जगह मीट करते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरी चीज होती है 2 तरह का प्लेटफॉर्म। ये आपका पहला प्लेटफॉर्म और दिस इज योर आइलैंड। इन दोनों को कनेक्ट करता है फुट ओवर ब्रिज। टर्न टेबल इज प्रोवाइडेड बिकॉज क्या होता है कि आपका जो जंक्शन स्टेशन है उसकी सबसे बड़ी फैसिलिटी ये होती है कि यहाँ पे हम ट्रेन को क्लीन करते हैं। ठीक है, ट्रेन को टर्न करते हैं, तो टर्न करने के लिए उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें टर्न टेबल का यूज करना होता है। देन वी हैव द स्टेशन बिल्डिंग, ओके, देन द गुड्स सेट, ओके, sand hump. So these are the components of a junction station. Okay, so these are the components of the junction station. These are the actually layout of the junction station, containing the loop line, main line, branch line, platform, island platform, turntable, foot over bridge, station building, goods sheds, okay, sand hump, etc. Okay, so this is the layout of the junction station. अब आगे बढ़ते हैं। Third thing was that terminal station. तो name itself suggests terminal का मतलब जहां पे ट्रेन टर्मिनेट कर सके। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे वो ट्रेन टर्मिनेट कर सके। ठीक है, तो टर्मिनल स्टेशन का पहला फीचर ये होता है, इट इज अ स्टेशन वेयर अ रेलवे लाइन और वन ऑफ इट्स ब्रांचेस टर्मिनेट्स। ठीक है, सो इट इज अ स्टेशन वेयर अ रेलवे लाइन और वन ऑफ इट्स ब्रांचेस टर्मिनेट्स। ये हो गया डेफिनेशन आपका टर्मिनल स्टेशन। टर्मिनल का मतलब जहां पे टर्मिनेट करे कोई एक ब्रांच। ठीक है, फैसिलिटीज रिक्वायर्ड इन द टर्मिनल स्टेशन क्या क्या है? वाटरिंग, कूलिंग, क्लीनिंग, सर्विसिंग द इंजन। वाटरिंग, कूलिंग, क्लीनिंग एंड सर्विसिंग द इंजन। उसके बाद टर्न टेबल फॉर द चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इंजन। अगेन अगर आपको इंजन का डायरेक्शन चेंज करना है उसके लिए हम टर्न टेबल प्रोवाइड करेंगे। तीसरी चीज है फैसिलिटीज फॉर डीलिंग गुड्स ट्रैफिक such as marshalling yard, engine sets, sidings etc. मार्शलिंग यार्ड के बारे में मैं एक अलग से लेक्चर प्रिपेयर किया हूँ, उसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन देयर शुड बी द फैसिलिटीज फॉर द डीलिंग द गुड्स ट्रैफिक, उसमें इंक्लूड करेगा आपका मार्शलिंग यार्ड, इंजन सेट, साइडिंग etc. उसके बाद है इन सर्कुलेटिंग एरिया टिकट ऑफिस, रेस्टोरेंट etc. are provided and it is directly connected to the road. So this is your terminal station जहाँ पे आपकी रेलवे लाइन की कोई एक ब्रांच टर्मिनेट करती है। उसकी फैसिलिटीज में है वाटरिंग, कूलिंग, क्लीनिंग, सर्विसिंग द इंजन, टर्न टेबल फॉर द चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इंजन, फैसिलिटीज फॉर डीलिंग द गुड्स ट्रैफिक सच एज मार्शलिंग यार्ड, इंजन सेट, साइडिंग्स etc. In circulating area there will be a ticket office, restaurant etc. are provided and it is directly connected to the road. Okay, अब टर्मिनल स्टेशन का एक लेआउट। ठीक है, ये है आपका टर्मिनल स्टेशन का लेआउट। पहले तो सबसे पहली चीज ये है कि आपका जो
मेन लाइन या ब्रांच लाइन का जो एक जो ब्रांच लाइन है, वन ऑफ द लाइन विल टर्मिनेट एंड इट विल consist of the different platform, जिसमें होगा प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 and 4, ठीक है, and it will consist of the track number 1, track number 2, track number 3 and track number 4, right? Now we have the checking space. This is your entry point, this is your exit point, this is your circulating area, right? And H is your hydraulic buffer. So this is your terminal station, which consists of different track, number 1, number 2, number 3 and number 4, with the various platform number 1, number 2, number 3, with the checking space, with the circulating area, with the entry and the exit point, and one of the branches of the main line terminates at this point. Okay, so this is your layout of the terminal station. Now, how will classify the station? कैसे क्लासिफाई करेंगे? ठीक है, तो ऑपरेशन के बेसिस पे इसका जो क्लासिफिकेशन है वो 3 तरीके से है: ब्लॉक स्टेशन, नॉन ब्लॉक स्टेशन और स्पेशल क्लास क्लासिफिकेशन। और ब्लॉक स्टेशंस को भी हमने डिवाइड किया है क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, और नॉन ब्लॉक स्टेशन को हमने डिवाइड किया है क्लास टी स्टेशन, या तो आप कह सकते हो फ्लैग स्टेशन, और चौथा है आपका स्पेशल क्लास स्टेशन, राइट? So how we classify the station? We classify it as block station, non-block station, and special classification. Okay, so ये आपका है block station. This is your block station. This is your non-block station. This is a special class station. और इसका further sub classification है class A, class B, and class C. Non-block stations का classification है class T station और flag station, and third one is your स्पेशल क्लास स्टेशन, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर पहला चीज है ब्लॉक स्टेशन, राइट? तो पहला क्लासिफिकेशन है ब्लॉक स्टेशन। ब्लॉक स्टेशन का मतलब ये हुआ द स्टेशंस एट द एंड ऑफ द ब्लॉक सेक्शन आर कॉल्ड ब्लॉक स्टेशन, ठीक है। इफ देयर इज एनी स्टेशन व्हिच इज एट द एंड ऑफ द ब्लॉक सेक्शन, अगर ब्लॉक सेक्शन के एंड पे कोई स्टेशन आपका अवेलेबल है तो उसको कहते हैं block station, right? So the station at the end of the block section are called block station. Authority to proceed is given in the space of token at this station. And how further sub classification of the block stations are done: class A, class B and class C. Class A क्या है? On these stations the track is cleared up to 400 mm beyond the home signal for giving permission to approach a train, ठीक है। On these stations, the track is cleared up to 400 meters beyond the home signal for giving the permission to approach a train. What is the class B station? In such station, the other signal is provided at about 580 meters from the home signal. ठीक है, तो क्लास स्टेशन में क्या करते हैं? क्लास A स्टेशन में on these stations, the track is cleared up to 400 meters. ठीक है, ट्रैक को 400 मीटर तक क्लियर करते हैं beyond the home signal for giving permission to approach a train. और क्लास B स्टेशन में क्या करते हैं? In such station, the other signal is provided at about 580 meters from the home signal. ठीक है, तो उसमें क्या होता है? पहले क्लास A स्टेशन में जो है होम सिग्नल के 400 मीटर बियॉन्ड ट्रैक को क्लियर करते हैं, ठीक है। और इस स्टेशन में क्या करते हैं? The other signal is provided at about 580 meter from the home signal. मतलब होम सिग्नल से 580 मीटर डिस्टेंस पे दूसरा सिग्नल, ठीक है, उसमें होम सिग्नल से 400 मीटर बियॉन्ड आपको परमिशन दी जाती है ट्रैक को क्लियर करने, ठीक है, टू अप्रोच अ ट्रेन। इस केस में क्या करते हैं? होम सिग्नल के 580 मीटर बियॉन्ड हम अदर सिग्नल को प्रोवाइड करते हैं। तो क्लास सी स्टेशन क्या होता है? ऑन दीज स्टेशन पैसेंजर्स आर नॉट बुक्ड. It is simply a block meant for the splitting a long block section and to reduce the interval between the successive train, ठीक है। और इसका पर्पस क्या होता है? On these station passengers are not booked, right? It is simply a block need for the splitting a long block section and to reduce the interval between the successive train. So this is your class A, class B and class C station, ठीक है। And what is block station? The station at the end of the block section are called the block station, right? इसके बाद block stations के बाद non block station. तो क्लास A, क्लास B और क्लास C ये ब्लॉक स्टेशन में
इसको क्लासिफाई किया जाता है। लेकिन अगर हम क्लास टी स्टेशन और फ्लैग स्टेशन को क्लासिफाई करें तो वो नॉन ब्लॉक स्टेशन हो जाता है। ठीक है, तो ऑल्सो नोन एज क्लास टी स्टेशन और दी फ्लैग स्टेशन। ठीक है, इट इज सिचुएटेड बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव ब्लॉक स्टेशन। ठीक है, इट इज सिचुएटेड बिटवीन दी टू कॉन्सेक्यूटिव ब्लॉक स्टेशन, may not be telegraphically connected to the adjacent station. No equipment or staff is provided for controlling the movement of the train. Trains are stopped by the flag signal. So what are the non-block station? It is also known as the class T station or the flag station. और फ्लैग स्टेशन जब मैंने बताया था आपको याद होना चाहिए, फ्लैग स्टेशन मैंने क्या बताया? फ्लैग स्टेशन वो होता है जो कि आपको एक ट्रेन को हॉल्ट कराने के लिए यूज किया जाता है, राइट? एक पॉइंट पे उसे स्टॉप करने के लिए यूज किया जाता है और वो स्पेशल रिक्वेस्ट पे। ठीक है, एंड इट इज सिचुएटेड बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव ब्लॉक स्टेशन, may not be telegraphically connected to the adjacent station. No equipment or staff is provided for controlling the movement of the train, and trains are stopped by the flag signals only. So this is your non-block stations, right? फिर बात करेंगे आपका स्पेशल क्लास स्टेशन। तो स्पेशल क्लास स्टेशंस को अगर मैं आपको एक डिफाइन करूं लेमैन लैंग्वेज में, तो स्टेशंस नॉट कमिंग अंडर द ब्लॉक स्टेशन एंड नॉन ब्लॉक स्टेशंस आर कॉल्ड द स्पेशल क्लास स्टेशन। ठीक है, तो ब्लॉक स्टेशन में आपका ब्लॉक ए, ब्लॉक बी एंड ब्लॉक सी। नॉन ब्लॉक स्टेशन में आपका है क्लास टी और द फ्लैग स्टेशन, और जो भी स्टेशन है आपका ब्लॉक स्टेशन और नॉन ब्लॉक स्टेशन के अंदर नहीं आता है उसको हम कहते हैं स्पेशल क्लास स्टेशन, राइट? उसके बाद बात करेंगे प्लेटफॉर्म, पैसेंजर एंड गुड प्लेटफॉर्म, राइट? हाउ यू डिफाइन द प्लेटफॉर्म? रेलवे स्टेशन के बारे में तो पता चल गया कि एक फैसिलिटी है जहां पे आप ट्रेन को लोड करते हैं थ्रू योर पैसेंजर्स एंड द फ्रेट, राइट? देन हमने इसको डिवाइड किया, देन उसका टाइप्स है, उसका क्लासिफिकेशन है, जिसमें आपका क्लास ए है, ब्लॉक स्टेशन है, नॉन ब्लॉक स्टेशन है और स्पेशल स्टेशन, स्पेशल क्लास स्टेशन, राइट? अब रेलवे प्लेटफॉर्म क्या होता है? अ रेलवे प्लेटफॉर्म इज अ सेक्शन ऑफ द पाथवे alongside the rail tracks at a railway station, metro station or tram stop at which the passengers may board or alight from trains or trams. ठीक है, तो एक रेलवे प्लेटफॉर्म वो सेक्शन या वो पाथवे है alongside the rail tracks at a railway station कहो या तो मेट्रो स्टेशन पे कहो या तो ट्राम स्टॉप पे कहो, at which passengers may board or alight from the trains or the trams. ठीक है, तो एक रेलवे प्लेटफॉर्म एक पाथवे है, ठीक है, एक सेक्शन है पाथवे का जो कि आपके रेल ट्रैक के अलोंग साइड प्रोवाइड किया जाता है। एक रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और ट्राम स्टॉप के अलोंग साइड प्रोवाइड किया जाता है जहां पे आपके पैसेंजर्स बोर्ड कर सकते हैं या तो ट्रेन से अलाइन कर सकते हैं या तो ट्राम से अलाइन कर सकते हैं। So a railway platform is a section of a pathway alongside the rail tracks at a railway station, metro station or tram stop at which the passengers may board or alight from the trains or trams, right? Almost all rail stations have some form of platform with larger station having multiple platforms. ठीक है, किसी भी तरीके का स्टेशन आप बता दो, फ्लैग स्टेशन हो, क्लास ए हो, क्लास बी हो, क्लास सी हो, क्लास डी हो, ब्लॉक हो, नॉन ब्लॉक हो, बे साइड हो, हॉल्ट हो, ठीक है, फ्लैग स्टेशन, हर स्टेशन पे वो आपके प्लेटफॉर्म का जो प्रोविजन है वो होता ही है। ये हो सकता है कि कोई छोटा स्टेशन है तो उस पर प्लेटफॉर्म कम है और बड़ा स्टेशन है तो उसमें 3-4 प्लेटफॉर्म होते हैं, राइट, जिसको हम फुट ओवर ब्रिज से भी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म टाइप्स इंक्लूड दी वे प्लेटफॉर्म, पहला होता है वे प्लेटफॉर्म, फिर होता है साइड प्लेटफॉर्म आल्सो कॉल्ड थ्रू प्लेटफॉर्म, स्प्लिट प्लेटफॉर्म एंड दी आइलैंड प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो अगर प्लेटफॉर्म का टाइप में डिवाइड करूं तो उसमें होता है वे प्लेटफॉर्म, VAY plate platform, then is your side platform, then is your through platform, side platform को through platform भी कहते हैं, then split platform and the island platform, right? A wave platform is one at which the track terminates, that is a dead end or siding. ठीक है, तो एक wave platform is a one at which the track terminates, that is a dead end or the siding. A
A side platform is the more usual type alongside tracks where the train arrives from one end and leaves towards the other. Okay. एक side platform is the more usual type alongside the track where the train arrives from one end and leaves the track the other. But island platform क्या होता है? Has two platform on both the side. It may be indented on one or both the end with the bay platform. तो एक bay platform जो है is one at which the track terminate. ठीक है? तो bay platform का मतलब ये हुआ जहाँ पे track आपका terminate करता है या तो dead या तो side. Side platform का मतलब ये हुआ alongside the tracks where the train arrives from one end and leave toward the other. मतलब दोनों साइड एक तरफ आ रही है दूसरी तरफ से जा रही है. और आइलैंड प्लेटफॉर्म का मतलब हुआ two platform on the both sides, दोनों साइड पे. ठीक है. It may be indented on both the end with the bay platform. Right. So this is your different types of the platform. So this is your passenger platform and this is your the pictorial representation of the goods platform. Right. So this is actually about your the entire lecture, and this lecture actually consists of the railway station. So railway station is your railway station बोलो या तो railway station बोलो या तो station बोलो, ये एक रेलवे की वो फैसिलिटी है जहाँ पे ट्रेन रेगुलरली स्टॉप टू लोड और अनलोड द पैसेंजर्स एंड और फ्रेट. राइट. And these are the different components which combines to form a station. Then this is the purpose of the railway station, जिसमें exchange of the passenger and goods, control of the train movement, to enable the train on a single line track, to enable the following express train to overtake, for taking the diesel or coal and water for locomotives, for detaching the engines and running staff, for detaching or attaching of the compartments and wagons, for sorting of the bogies to form new trains, housing of the locomotive in loco sheds in emergencies, in ease of dislocation of tracks due to rains, accidents, etc., for repairing the engines and changing their direction, for the suitable approach to the roads and the surrounding areas. Types में आपका है wayside station, junction station and terminal station. Wayside station is further subdivided into halt station, flag station and the crossing stations. Halt station में special request पे train stop. Okay. And it is not provided with any staff, okay, and no facilities. This is your simple layout of the halt stations. Flag station is a stopping point as the train stop as per the needs and the request basis, and this has actually the no facility of overtaking and crossing, but the arrangement is made for building staffs and telegraph facility. This was your layout of the flag station. Then the crossing station का मतलब we provided with the facilities for price crossing. जिसमें एक loop line है, आपका एक main line है, loop line है, right, जहाँ पे एक लाइन पे आपका ट्रेन पास करती है और एक लाइन पे आपका ट्रेन जो है वो वेट करती है. ठीक है. तो ये आपका क्रॉसिंग स्टेशन है. राइट. देन इज योर जंक्शन स्टेशन. जंक्शन स्टेशन का मतलब ये हुआ जहाँ पे different lines from 3 or more directions meet. ठीक है. Where a branch line meet the main line is known as junction. अगर मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ कि how do you define a junction? When where a branch line meets the main line. Or what are the different arrangements in junction station? Interchange of the traffic between the main and the branch line. Then this was your the layout of the junction stations. उसके बाद मैंने बताया आपको टर्मिनल स्टेशन. एक सिंपल लैंग्वेज में टर्मिनल स्टेशन का मतलब जहाँ पे रेलवे लाइन या उसकी एक ब्रांच टर्मिनेट करती हो. और फैसिलिटीज रिक्वायर्ड क्या है? वाटरिंग, कूलिंग, क्लीनिंग, सर्विसिंग द इंजन. टर्न टेबल है फॉर द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द इंजन. फैसिलिटी है फॉर डीलिंग द गुड्स ट्रैफिक such as marshalling yard, engine sets, siding. In circulating area, ticket office, restaurant, etc. are provided and it is directly connected to the road. Then this is your the layout of the terminal stations. And how you classify these stations? You classify the station into 3 different types on the basis of its operation. That is block station, class A, class B, class C. Non-block station, that is class T or flag station. And the third one is
जब आप ब्लॉक स्टेशन और नॉन ब्लॉक स्टेशन में नहीं उसे क्लासिफाई करते हो तो उसको हम कहते हैं स्पेशल क्लास स्टेशन, राइट? Now the question was, what is block station, right? So the stations at the end of the block sections are called block stations, okay? और इसको हम डिवाइड किया क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी में. इसमें क्लास ए, the track is cleared up to 400 meter beyond the home signal for giving permission to approach a train, and the class B was in which the other signal is provided at about 580 meter from the home signal, and class C was on these station passengers are not booked. It is simply a block meant for splitting a long block section and to reduce the interval between the successive train. Where a non-block station था class T बोलो या तो flag station बोलो, situated between two consecutive block station. No equipment or staff is provided. Trains are stopped by flag signals only. Then third one was your on the basis of the operation. It was special class station. Stations not coming under the block station and non-block stations are called special class stations. Then मैंने बताया आपको प्लेटफॉर्म या उसमें दो तरह का है, पैसेंजर प्लेटफॉर्म या तो गुड प्लेटफॉर्म. तो एक प्लेटफॉर्म आपका जो है एक सेक्शन होता है पाथवे का अलॉन्ग साइड द रेल ट्रैक्स, जहाँ पे आपका रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और ट्राम स्टॉप के आसपास होता है, जहाँ पे आपका पैसेंजर will board or alight from the trains or the trams. Almost all the rail station have some form of the platform, with larger stations having multiple platform. और प्लेटफॉर्म्स में अगर टाइप इंक्लूड करें तो बे प्लेटफॉर्म, साइड प्लेटफॉर्म, also called through platform, split platform or island platform. And bay platform is one at which the track terminates, that is a dead end. Side platform ka is the more usual type alongside the tracks, where the train arrives from the one end and leaves towards the other end, right? And the island platform has two platform on both the side. It may be indented on one or both the end with the way platform, right? ये था आपका एक पैसेंजर प्लेटफॉर्म का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, राइट? एंड दिस इज योर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गुड प्लेटफॉर्म, राइट? सो दिस इज एक्चुअली अबाउट योर railway stations, its types, its classification, then its platform with different types, right? Now मार्शलिंग यार्ड्स के बारे में और यार्ड्स के बारे में हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, right? So this is all about the lecture 20. I hope you all enjoyed this lecture. Thank you so much for listening it patiently. Have a nice day, have a good day. Thank you, students. Thank you.